संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਫਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
नमस्कार दर्शकों, परमात्मा के विधान में है, कोई उसे आत्मा से पुकारे तो वह उसके सभी बंधनों को तोड़ देते हैं। कुछ ऐसी आप बीती झारखंड के डुमका की रहने वाली ममता देवी जी की है, जो पिता और पति के बंधनों में बंधकर अपने ईश्वर के प्रति अटूट आस्था को दबाए बैठी थी। मुश्किलें भी उनका पीछा नहीं छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। माँ बनने का खुशी हुई तो डॉक्टरों ने कह दिया कि बिना ऑपरेशन डिलीवरी नहीं होगी। सभी कठिनाइयों के बीच ममता ने आत्मा से परमात्मा से प्रार्थना की तो उस सच्चे दरबार में परमात्मा ने उनकी पुकार सुनी और उसके सभी दुख चमत्कारी ढंग से समाप्त हो गए। बिना किसी ऑपरेशन के डिलीवरी हो गई। ममता जी का कहना है कि मेरे पति जो पहले बहुत विरोध कर रहे थे, वही आज मेरे भक्ति मार्ग में सहयोग कर रहे हैं। आखिर ममता जी ऐसा क्यों बोल रही हैं? आइए सुनते हैं ममता जी की प्रेरणादायक कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? ममता देवी। बहन जी आप कहाँ से हैं? दुमका जिला झारखंड से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? 27 मई 2020। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा पाठ करते थे, देवी दुर्गा जी का भी पूजा करते थे, और जब भी नवरात्रि आरंभ होता था तो उस समय भी हम पूजा पाठ करते थे, और दुर्गा चालीसा भी करते थे, और शिव चर्चा भी करते थे। तो इससे कोई लाभ नहीं मिलता था हमको। और एक दिन ऐसा भी हुआ कि मेरे पिताजी कहते हैं कि तुम इतना भी करती है तो पर भी सब तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है। तो इससे मतलब कि मेरा उस सबसे भी दिल हट गया, छोड़ दिए सब कुछ। और परमात्मा का भी ज्ञान हम सुन लिए थे गुरु जी का 2012 में ही। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हम 2012 में सुन लिए थे। तो उस समय हम संकल्प ले लिए थे जब भी हम गुरु बनाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी को ही गुरु बनाएंगे। लेकिन जब उपदेश नहीं लेने के वजह से, हम अकेला होने के वजह से, हमको कोई साथ देने वाला नहीं था, इसलिए तो हम उपदेश नहीं ले पा रहे थे और सिर्फ चर्चा ही कर रहे थे उस समय। लेकिन अंदर से आता था कि नहीं, जब भी हम गुरु बनाएंगे, सच्चा गुरु, हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को ही गुरु बनाएंगे। बहन जी फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? 2015 में मेरा शादी हो गया। उसके बाद फिर दोनों परिवार वाले का मेरे ऊपर दबाव रहने लगा, मायके वाले का भी, ससुराल वाले का भी। मायके में भी पापा सब ज्ञान नहीं समझे थे तो उसे भी मना करते थे उस समय, और ससुराल वाले में भी मना करने लगे। तो उसके बाद सब भी हम पहले जानकारी देते थे कि ऐसे ऐसे इसमें नियम मर्यादा रहता है, लेकिन मर्यादा हम फॉलो कर रहे थे पहले से कि हमको उपदेश लेना चाहे किसी भी हालत में लेना हो, तो हम पहले से ही कुछ मर्यादा फॉलो कर रहे थे। फिर मालिक से हम 2020 में उपदेश ले लिए। और क्या हुआ कि उपदेश लेने से पहले, जबकि मेरा बाबू आने वाला था, डिलीवरी होने वाला था 2017 में ही, तो 3 दिन हम हॉस्पिटल में रहना पड़ गया हमको, और पूरा फूल गए थे। और जबकि डॉक्टर जवाब दे दिए कि ऐसे नॉर्मल नहीं होगा, इसको बड़ी ऑपरेशन करना पड़ेगा। और पापा सब भी पूरा रोने लगे, और हमको भी एकदम पूरा लगने लगा कि नहीं, बेकार हैं। तब फिर याद करने लगे कि गुरुजी को, हे मालिक, अगर आप परमात्मा हैं तो देखिए हमको यहाँ से निकालिए, इस जेल से, जो कि हम अभी हॉस्पिटल में हम बर्बाद हो जाएंगे, हमको यहाँ से निकालिए। उसके बाद ऐसा लगा कि आंधी टाइप का आया, और उसके बाद फिर मतलब कि ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ से निकलने से ही अच्छा होगा। और मालिक की दया से सबका माइंड घूम गया, और वहाँ से हम लोग निकल गए। चेक भी हो गया था, अब बस इतना सा बचा था कि रूम में ले जाना है और ऑपरेशन करना है। फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ से हमको निकाल दिए और दूसरे हॉस्पिटल में गए, और वहाँ जाके हम मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। बच्चा आने के बाद बच्चे भी बीमार पड़ने लगे, पूरा आइसनोफिलिया बच्चा को हो गया। उसके बाद 2 साल 3 साल तक बच्चे में भी जूझ गए थे पूरा बीमारी में। तो संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद मेरे बच्चे का आइसनोफिलिया भी ठीक हो गया। और जब भी मेरा पीरियड आता था उस समय 2 दिन 3 दिन हम भंडारा नहीं करते थे, खाना नहीं खाते थे, पूरा पेट में दर्द होता था, दवाई लेना पड़ता था। और एक बार ऐसा हुआ कि 20-25 दिन तक मेरा मतलब पीरियड चलता रह गया, ब्लीडिंग होता रह गया, तो पूरा एकदम बेकार हो गए थे हम, मतलब कि चल नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं सकते थे। तो उसके बाद फिर हमको कोई डॉक्टर बोल दिया गांव में ही कि नहीं, इसको ऑपरेशन करना पड़ जाएगा, इसको इतना दिन ब्लीडिंग होने के बाद इसको कैंसर का ऐसा बीमारी हो सकता है। लेकिन जब कि हम दीक्षा ले लिए, ये सब सुन के उसके बाद हम उपदेश ले लिए। परमात्मा को याद करते रहते थे, गुरुजी कब हमको दीक्षा आप देंगे, कब हमको आप शरण में लेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर परिवार वाले का दबाव था, ये सब मना कर रहे थे लेने से। और उसके बाद फिर सपने में आते थे मेरे गुरुजी। एक दिन ऐसा हुआ 3-4 दिन सपने में आए गुरुजी, दर्शन दे के चले जाते थे। जबकि हम बीए में पार्ट 2 में पढ़ रहे थे उस समय, हमको पढ़ना था, जिस कोर्स का मेरा एग्ज़ाम था
हम वो नहीं पढ़ते थे, हम पढ़ते थे गीता तेरा ज्ञान अमृत। हमको वो बुक मिला था, मेरे फुआ के बेटे ने दिया था हमको, तो हमको आनंद आता था वही बुक पढ़ने में। संत रामपाल जी महाराज जी की दया हुई कि उनकी कृपा से बीए में भी हम ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन से पास किए। हमको इतना एहसास नहीं हो रहा था कि हम इतना नंबर ला पाएंगे, और उनकी कृपा से ग्रेजुएशन में हम कंप्लीट हो गए। संत रामपाल जी महाराज जी से ऑनलाइन हम दीक्षा 2020 में दीक्षा ले लिए। तब फिर जब कि पता चला मेरे घर वालों को, ससुराल वालों को, मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिए कि तुम दीक्षा अगर ले ली है तो ठीक है, जाओ तुम वहीं रहो और जो करना है तुमको करो, हमको जो करना होगा हम करेंगे, हम तुमको नहीं लाएंगे, तुम रहो, हम रहेंगे, हम दूसरा शादी कर लेंगे। तो फिर ऐसे मतलब कि प्रार्थना लगाएं किताब में, जो गुरुजी का, जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो लिखा हुआ किताब है उसमें नंबर दिया रहता है, तो नंबर पे हम प्रार्थना लगाएं। गुरुजी का नंबर आया, आदेश आया, जिस दिन प्रार्थना लगाए दूसरे दिन आदेश आया। तो आदेश आने के आधा 1 घंटा बाद मेरे हस्बैंड हमको लाने के लिए पहुंच गया वहाँ। और वही अभी मेरे हस्बैंड है जो कि अभी अगर हम कहते हैं कि ऐसा करेंगे तो बोलते हैं ठीक है जाओ, और अभी हमको पूरा साहस दे रहे हैं वो कि नहीं तुम भक्ति कर सकती, जितना जो कर सकती है, दान भी करना है करो, जो भी करना है तुमको करो, भक्ति में हम तुमको मना नहीं करेंगे। ये संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, जो कि हमको संभव नहीं लग रहा था कि ऐसा होने वाला है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? टीवी पे जो सत्संग आता है तो नीचे पीले पट्टी में नंबर आता है, और जितना भी संत रामपाल जी महाराज जी का लिखा हुआ बुक है वो बुक में भी नंबर आता है। वो नंबर से कांटेक्ट करके अपना सेंटर पता कर सकते हैं और वहाँ से आप नाम ले सकते हैं। जो भी देख रहे हैं, जो भी नाम लेना चाहते हैं, ज्ञान समझे नाम ले। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सत सुकृत रहता है। त्रेता में मुनिंदर नाम से परमात्मा प्रकट होते हैं। द्वापर में करुणामय नाम से परमेश्वर एक लीला करते हैं, जो बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, जनसाधारण जैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके नीचे आते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं। और प्रत्येक, जैसे आम व्यक्ति जनसाधारण अपने हाथों से निर्वाह करके गुजारा करता है, निर्वाह करता है, अपने सब कर्म करता हुआ, ऐसी वो लीला करता है। और साथ में वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करता है। तो वो परमात्मा कलयुग में अपने वास्तविक नाम से आए थे, कबीर नाम थे, कबीर नाम थे। आपको बहुत बार कथा सुनाई है, जब द्वापर युग में परमात्मा आए हुए थे कबीर जी, यानी परम अक्षर ब्रह्म, अपनी लीला करने के लिए। उस समय वो जब शिशु रूप धार करके एक तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान हुए, वहां से उनको एक वाल्मीकि दंपत्ति जो निसंतान थे वो उठा ले गए थे। द्वापर युग में परमात्मा की परवरिश एक वाल्मीकि परिवार के घर पे हुई थी, और वहां उनका ही एक मित्र था, उन परमात्मा का एक, वहीं वाल्मीकि उस समुदाय के अंदर एक सुदर्शन नाम का बहुत अच्छी आत्मा का भगत था, वो परमात्मा का शिष्य हुआ था। और सुदर्शन जी के माता पिता, उन्होंने परमात्मा कबीर जी की बात को स्वीकार नहीं किया था। सुदर्शन जी बहुत अच्छे परमात्मा को अच्छी तरह समझ चुके थे,
अपने माता पिता से भी बहुत बार प्रार्थना करते थे, लेकिन बात यह आ जाती है कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सद, क्योंकि वो उसी कॉलोनी में रहे भगवान, वाल्मीकि के घर में जन्म, तो उसको भगवान मानना हंसी खेल नहीं। बिना ज्ञान के भगवान की पहचान हो नहीं सकती, वो नहीं माने। अंत में जब परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन, उसके माता पिता शरीर छोड़ गए, लेकिन भगवान से उपदेश नहीं लिया। तब सुदर्शन जी के जाने का समय आया, तब परमात्मा वहां पहुंचे कि सुदर्शन, सतलोक की तैयारी है बेटा, अग्निक की तैयारी है। आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, इसे गंदे लोक में फिर पैर फंस गया तो दाता क्यों करीब सूत में नहीं आओगी। ठीक है बेटा, एक बात बता, तेरी कोई इच्छा तो नहीं है? क्योंकि इच्छा सबसे बड़ी दुश्मन है इस जीव की, वापस ला फंसाओगी। सुदर्शन जी ने कहा कि प्रभु कोई इच्छा नहीं दास की, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया। कुछ देर के बाद कहता है, भगवान एक प्रार्थना है इस दास की। मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा के थे, बहुत ही नेक थे। हे परमात्मा, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया। हे दाता, वो इस काल के जाल में फंस गए। और मेरी एक थोड़ी सी प्रार्थना आपसे, उचित समझो तो प्रभु स्वीकार करना, उनको पार करना प्रभु, किसी जन्म में उनको पार करना। अब परमात्मा ने सोची यू भी फंसेगा, अब यू भी रहेगा यहाँ पर। मुश्किल से एक निकालन की सोची थी काल के जालते, यू भी फंस गया। यह भी कमजोरी ये है। एक बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया और जाके कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी कमर दुख है। डॉक्टर ने देखा अस्थि पिंजर से रह बूढ़ेगा, वो कहने लगा, बाबा यह कमजोरी है, वीकनेस है ये शरीर में। फिर कहता मैं खड़ा होता हूं तब चक्कर आता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। मेरी पिंडी भड़के हैं, मेरी पिंडियों में दर्द होता है, पिंडलियों में। डॉक्टर बोला कमजोरी है। अब इस बात पे वो बूढ़ा नाराज हो गया, ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने कमजोरी है कमजोरी है कमजोरी है। अब वो डॉक्टर ने बोला बाबा यह भी कमजोरी है कि बूढ़े आदमी ने, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गना आवे, तो यह भी कमजोरी है, कमजोरी के कारण गुस्सा आएगा आपको। तो परमात्मा ने जान लिया कि यह भी कमजोरी है, बोल रहा सुदर्शन में, बिल्कुल तैयार हो लिया और यह इच्छा बीज फिर रख दिया काल ने। परमात्मा कहते हैं इच्छा दासी जम की या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं या सतखसमी नार। अब जैसे हमने यहां से चलना है, हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य अति आवश्यक है। और ये पुण्य एक ऐसा आपका जहाज बनेगा साथ में, क्योंकि सब सहयोग होता है मंत्र का भी। जहाँ तक इस पुण्य का काम है, ये पुण्य वहाँ तक आपको मदद करेगा। लेकिन वहाँ जाकर इस पुण्य की तरफ नहीं देखना आपने, क्योंकि वहाँ चलने के बाद जहाँ अकाउंट होता है वहाँ खड़े रहते हैं दूत काल के, और नो कहेंगे अगर तेरी तो बहुत कमाई है, ओहो तू तो भाई, आप तो जो है ना ऐसे विष्णु लोक में देवता बन सकते हो, आप तो ब्रह्म लोक में ऐसे बन सकते हो, आप तो 10 जन्म तो इंद्र के पा सकते हो। ये पुण्य के कारण। तो वहाँ आपने ये पुण्य भी नहीं रखना, ये पुण्य भी हमारा दुश्मन वहाँ होगा, यहाँ नहीं। यहाँ तो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो वहाँ जाकर ये पुण्य की तरफ भी आपने नहीं देखना, कामना ना बनना। कहते इंद्र दा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नू। इतनी हेट हो जाए यहाँ के लोग की के वहाँ इंद्र बन गया फिर गधा बनेंगे आकर के।
ये बातें याद रखने की है। परमात्मा ने सोचा कि ये बालक भी रह गया यहीं पर, क्योंकि परमात्मा का और काल का एक वार्तालाप होया था। तब इस काल ने परमात्मा अपने पुत्र के रूप में खड़े थे वहां पर, वो समझ नहीं सका कि ये भगवान है या सहजदास है या जोग जीत है। कभी परमात्मा किसी रूप में आ जाते हैं, कभी किसी के रूप में। तब उसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना प्रभु, 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु आवे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे। तो 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग में कितने ही जीव ले जाना, ऐसा प्रतिज्ञा परमात्मा से ले ली थी। भगवान ने कह दिया था ठीक है, पर परमात्मा भी जान थे कि ये 3 युगों में ये भक्ति को नहीं करें, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माएं होती हैं, मजबूत शरीर होता है, पिछले पुण्य साथ होते हैं, और कोई भी साधना वो कर रहे हैं उनको पिछले पुण्यों से लाभ होता ही रहता है। तो ये सोचते रहते हैं कि जो साधना मैं कर रहा हूँ वही, उसी से मुझे पुण्य हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा ने ये चौथा युग चुना था कि चौथे युग ये खाली हो लेंगे, कति खोखे हो जाएंगे, पुण्य इनके साथ रहे नहीं, इनकी ब्राह्मटी होगी, और ये साधना भी कर रहे होंगे डुप्लीकेट काल की प्रोड्यूस की हुई, इनसे उनको कोई लाभ नहीं होगा। और फिर हम जाएंगे या अपना कोई दास बेच देंगे, अपना प्रतिनिधि, और फिर पावर मालिक की काम करती है, हम इनको सुख देंगे, ये पहचान जाएंगे भगवान कौन है और छोड़ देंगे उन नकली साधनाओं को। तो इस दृष्टिकोण से परमात्मा ने वहां सोचा था कि मुश्किल से तो एक युग तैयार कराया था, और ईब यो भी गोडे टेक ज्ञानियों के आगे मन में दोष तो आ ही लिया। अब उस सुदर्शन जी को ये विश्वास था कि यदि परमेश्वर ने एक बार हाँ भर ली तो मेरे पिताजी पार ही होंगे, माता पिता। तो परमात्मा ने कहा ठीक से बेटा, चिंता ना कर, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा, पर उन्हें गलती तो बहुत करी, लेकिन मैंने तेरे से वचनबद्ध हो गया। मैं आप पे कह दी भगवान ने, नहीं तो वो कहता, परमात्मा ने सोची थी वो डूबेगा ही। तब उसको एकदम शांत हो गया, हे भगवान बड़ी दया करी, हे परमात्मा बड़ी रजा करी। अब वो तो भेज दिया सतलोक में सुदर्शन। तो अब क्या हुआ कि उसके माता पिता अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, उनका दोनों का, पति पत्नी का फिर योग हुआ। परमात्मा वहां पहुंचे, उनका संतान नहीं थी कोई भी। परमात्मा उनको 3 वर्ष के बालक के रूप में मिले। सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया, किसका बालक है, मुनादी करवा दी, किसी ने स्वीकार नहीं किया। अधिकारियों से भी बात करा दी कि किसी ने नहीं लिया, तो उन्होंने कह दिया आप ही रख लो। अब 3 वर्ष का बालक, और उनको न्यू कहे। अब माता पिता तो कहना ही था भगवान ने, और कहता बैठा के बैठ जाते जब कभी, कहते आप भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, मैं परमात्मा हूं, और भक्ति करो, मैं नाम बताऊंगा, अपने नाम ले लो। वो हंसन लग जाते थे, दादा पाक गया है, हमने का नाम ले ले, मैं भगवान हूं। तो उसने पागल कहने लगे, पागल है यो लड़का, पता नहीं क्या बोलने लग जाता है। जब परमात्मा ने खूब कोशिश की, 1-2 वर्ष उनके संग रहे, वो नहीं माने तो अंतर ध्यान हो गए उनके सामने से। अब उनको इतना जबरदस्त बैराग हो गया भगवान का, हे परमात्मा ये तो सचमुच भगवान थे, हमने तो एक बालक माना था। अब ये कर्म बनाओ थे, उनकी वह एक तरफ कसक वो मेडिटेशन बन गया। उनकी मृत्यु हुई इसी कसक में, अगला जन्म फिर ब्राह्मणी का हो गया, संतान वहां भी नहीं। अब वो शिव जी के पुजारी थे,
गौरी शंकर सरस्वती नाम था उनका, गौरी शंकर ब्राह्मण का, सरस्वती उसकी पत्नी का। और ये दोनों आत्मा थी सुदर्शन वाले माता पिता। अब परमात्मा ने सोची जय ये ब्राह्मण रहेंगे तो माने नहीं। अब परमात्मा ने अपने प्यारी आत्मा को पार करने के लिए जो भी कारण बनाना है उसी से ही वो बात बनेगी। अब क्या हुआ, वो शिव के पुजारी थे, नेक आत्मा थी, भगवान शिव की कथा करते थे और जो भी दान दक्षिणा आ जाती थी केवल भोजन योग्य रख लेते थे, भोजन जितनी बाकी का भंडारा कर देते थे, दान धर्म लगा देते थे। अन्य उनकी बहुत ज़्यादा महिमा होगी। अन्य ब्राह्मण जो थे वो उनसे ईर्ष्या करने लगे क्योंकि लोग गणे प्रशंसा करें और वहाँ जाकर दान गणा दे कथा में। और वो जो ढोंगी टाइप थे, लोग अनबकाम थे, उनकी महिमा कम होने लगी, वो ज़्यादा थे संख्या में। इस बात का पता चला मुसलमानों को कि हिंदू धर्म का ज़्यादा प्रचार जो गौरी शंकर कर रहा है। और उनको यह भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण इनसे ईर्ष्या करते हैं, इनका साथ नहीं देंगे। जबरदस्ती मुसलमान बना दिया उनको, जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। अपना जल छिड़क दिया उनके घर में, उनके मुंह में डाल दिया, एकदम मुसलमान हो गए। अब वो ब्राह्मण चार बैठे ही थे जो दूसरे थे, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान हो गया, इनका भाईचारा बंद, इनको गंगा में स्नान करना बंद, ये मुसलमान हो गए। वो तो बाट देखे थे, उनको तो इंतजार थी इसे दिन की। सब जगह डंडोरा पीट दिया, वो मुसलमान बन गया, गौरी शंकर मुसलमान बन गया। अब वो मुसलमान बन गया तो बन गया, अब क्या करे, मजबूरी होगी क्योंकि ब्राह्मणों ने बाईकाट कर दिया उसका। उनका नाम रख दिया नूर अली और उसकी पत्नी का नाम रख दिया नियामत। उनको फिर नीरू और नीमा कहने लगे। अब गंगा में स्नान करना बंद कर दिया मुसलमानों का कि तुम नहीं नहा सकते इसमें, किसी को नहीं स्नान करने देते थे गंगा में वहां पर, मुसलमानों को खासकर। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब क्या करें भाई। गौरी शंकर सरस्वती ने, नीरू नीमा ने विचार किया कि पहले तो रोजी रोटी चल रही थी कथा करने से, फिर उन्होंने सोचा भी ऐसा कौन सा आसान कार्य है जो बिना पैसे के शुरू हो सके, हमारे पास पैसा तो है नहीं। तो उन्होंने फिर कपड़ा बुनने का काम सोचा। उसमें कुछ नहीं करना, एक 4 लठ गाड़ने होते हैं, 4 खुट्टे से बस लकड़ी काट लाओ जंगल बात। तो वो कार्य शुरू कर दिया। और इतनी नेक आत्मा थी फिर भी उनका जो मेहनताना आता था, दोनों की रोटी से जो बच जाता था हफ्ते 10 दिन में भंडारे में लगा देते थे, यानी पुण्य करते थे। उनको संतान नहीं थी। पुण्यात्माओं, समाज के अंदर हम ऐसी कुरीतियां भर चुके हैं कि आधे से ज्यादा हम उनसे दुखी हैं। संत मते के अनुसार, परमात्मा के विधान अनुसार, ठीक है, संतान भगवान देता है, वो हमारा संस्कार है और उन संस्कार को हमने भोगना है। लेकिन परमात्मा की शरण में आप भी आओ और बच्चा ने भी ला दे तो फिर परमात्मा के भी टॉप आवर्त हैं। पूर्ण परमात्मा के पास, कबीर भगवान के पास एक ऐसी शक्ति है कि वो हमारे संस्कारों को चेंज कर सकता है। अन्य भगवान ब्रह्म पर ब्रह्म यहाँ तक कोई नहीं कर सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश कर सकते। हमारा एक दूसरे से लेन देन है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, यहाँ कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। जब सुखदेव ऋषि अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे, जब बाहर आते ही उठकर चल पड़े, अपनी और नाल को कमर पर डाल ली। और जब व्यास जी ने कहा था, अरे बेटा मुंह तो दिखा दे, पीठ करके चल पड़ा। अरे 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, पुत्र मोह में व्याकुल हो गए व्यास जी और कहा एक बार शकल तो दिखा दे मेरा बेटा।
तो सुखदेव दूसरी तरफ मुंह किए हुए कहता है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बूंदी बीमारी है, कट्टन दे मेरा रोग। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। इसलिए संस्कार से सिद्धि थी उसमें। तो उसमें कहा था सुखदेव ने कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। यहाँ तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। यह एक कथा है, बिल्कुल सच्ची समझो इसको। 2 भाई थे, पिता ने पहली शादी करवाई, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो पत्नी मर गई। दूसरी शादी कराई, उससे दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पिता के एक के संतान थे, माताओं के 2 के थे। उनकी एज में भी काफी डिफरेंस था। बड़े पिता की मृत्यु होगी, बड़े भाई का विवाह हो गया। छोटा भाई जब 10-1 वर्ष का था अस्वस्थ हो गया। इलाज करवाना चाहा, 10-20 हजार 2,000 रुपये लगाए, स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। तो दोनों ने, पति पत्नी ने मिलकर सोचा, उस बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने, कि आधी संपत्ति का हकदार है, सबको पता है मरने वाला है, बीमार बहुत है, क्यों पैसे व्यर्थ करते हो, इसको विष दे देते हैं या विष का इंजेक्शन लगवा देते हैं। एक सलाह बन गई, क्यों बुरे काम में जल्दी बात बने हैं, एक राय हो जाती है। तो एक डॉक्टर से बात करी, उसने कहा कि तू ऐसे ऐसे कर दे, इसके इंजेक्शन लगा दे या कोई औषधि दे दे विष की, ट्रीटमेंट आपसे चल ही रहा है। तो उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा, और 500 रुपये दे दिए। उस समय के 500 रुपये। कहने का भाव यह है कि उस लड़के की मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो 2-3 वर्ष के बाद, 1-2 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया, और सारी संपत्ति उस भाई वाली भी उससे की होगी। तो उस बच्चे को खूब लाडते, खवावें, प्यावें खूब। गिने दिनों में 15-16 वर्ष का हो गया। 15-16 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह कर दिया। विवाह होते ही वो लड़का बीमार हो गया, वो लड़का अस्वस्थ हो गया, और उसके इलाज में, ट्रीटमेंट में संपत्ति बेच दी। घर में पैसा था वो सारा ला दिया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो रहा। एक दिन वो बैठा, उसका पिताजी और लड़का चारपाई पे अंतिम सांस गिने था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, मेरी कफन की तैयारी कर ले, और लकड़ियों की। तब उसने सोचा कि इस लड़के का इतना अस्वस्थ दिमाग हो गया कि मुझे पहचान नहीं रहा। उसने कहा, बेटा मैं तेरा पिताजी हूँ। वो कहने लगा, मुझे पता है तू मेरा पिताजी नहीं, तू मेरा भाई है। तुझे याद होगा आपका एक छोटा भाई था अखां, और उसको तूने कैसे मारा था? विष दे के। और मैं ही वो हूं, और तेरे पुत्र रूप में जन्म लिया मैंने। अब भाई साहब मेरा हिसाब बराबर हो गया। जितनी मेरी संपत्ति तूने हड़पी थी वो सारी ले ली, सारी खर्च हो रही मेरे ऊपर। अब लकड़ियों के और कफन के पैसे शेष है, और इनकी तैयारी करना चला। तब उसने पूछा कि भाई बात तेरी सारी सच्ची है, सही मैंने जुल्म किया तो मेरे आगे आगी एकलौता पुत्र है, और आगे होने की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया। मैंने जैसा किया मुझे तो भोग मिल गया। भाई भगवान का न्याय, बड़ी अच्छी बात, मुझे मिलना चाहिए था दंड। परंतु ये जो तेरी पत्नी है, इसने क्या जुल्म कर दिया बेचारी ने। ये अब तेरे मरने के बाद इसको जिंदा जलावेंगे, सती प्रथा थी वहां पर। अब इसने क्या जुल्म किया? उसने पूछा वो डॉक्टर कहाँ है? कि वो डॉक्टर भी 2 वर्ष के बाद, तेरे मृत्यु के 2 वर्ष बाद अचानक मर गया। तब उसने कहा कि ये वही डॉक्टर है जो मेरी पत्नी बन के आई है। अब यह जड़ेगी और नहीं तो और क्या होगा इसका पाप आत्मा का। तो यहाँ इन बातों को पुण्यात्माओं आपने अपने हृदय में जचाना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्परम को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान को जानकर सब कर्मों से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है।
वो यहाँ किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। तो पुण्यात्माओं, हमने सब कर्मों से परिचित होना है। एक समय एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे। एक मछियारा मछली पकड़ रहा था और उनको पकड़ पकड़ के जाल भर भर के बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प के मर रही थी। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या सजा मिलेगी? गुरुदेव ने कहा, बेटा आजा, फिर बताऊंगा, समय आने पर उत्तर दूंगा तुझे। कुछ 5-7 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद दोनों गुरु शिष्य जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, वन से। वहां एक हाथी का बच्चा उछल कूद करता करता 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। बहुत निकट निकट थे। निकलने की चेष्टा की लेकिन नहीं निकल पाया। निकलने की चेष्टा करने में उसकी सारी खाल छुल गई। वो निकलते आया बाहर, लेकिन इतना लाचार हो गया, वो गिर गया। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए, कीड़े, और वो बुरी तरह चिल्लाहट मार रहा है, चिल्ला रहा है। अब उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इस प्राणी ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया? देखो कितने कीड़े पड़े हुए इसके शरीर में, चिल्ला रहा है। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा, जो मछियारा आपने देखा था, प्रश्न पूछा था मेरे से, एक मछियारा मछलियां पकड़ रहा था, आपने पूछा था कि इसको क्या दंड मिलेगा? कहने लगे कि ये वही अपराधी है, हाथी की जूनी में आदि जितनी मछलियां थी वो इसको नोच नोच कर इसका मांस खा रही है, ये कीड़े बन के। तो पुण्यात्मा, परमात्मा कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। हम फिर अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। अब नीरू और नीमा अपना दुल्हाई का कार्य करते थे, उनका संतान नहीं थी। अब परमात्मा जब सारी सृष्टि रच सकता है, क्या संतान नहीं दे सकते? उन्होंने उचित नहीं समझा। तो उन्होंने उचित इसलिए नहीं समझा कि इनको संतान दूंगा तो फिर नए सिरे से इनका फिर वो काम शुरू हो जाएगा, चक्कर। अब इनके पिछले लेन देन समाप्त हो रहा है और बात लवेला गिरी है। परमात्मा जानकार डॉक्टर थोड़ा गलती कर सकता है? डॉक्टर गलती नहीं कर सकता कि इसमें ऑपरेशन बने बनाए काम ने फिर बिगाड़ दे। तो परमात्मा का उद्देश्य यहाँ से निकालना है, सभी आत्मा उसकी है। हम तो अपने सुख के लिए बेटे न रोए हैं कि बड़ा हो के कमावो हैं और ये मुझे सुख दे, फलाना करो। और वो बालक बीमार हो जा 6 महीने और अच्छी खूब तो पैसे लगे, 1 साल में सारा परिवार न्यू कहे भगवान इस नठा ले, इसका अच्छा था, देखा नहीं जाता, घना दुखी हो रहा है। और परमात्मा जो फैसला करता है वो बिल्कुल सही करता है। तो संसार के विचारों से और आध्यात्मिक मार्ग में बहुत अंतर है। इसलिए कहते हैं जगत और भगत का बैर बना रहता है, विरोध होता है। विरोध का कारण यही है कि संसार की बातें अपने सतर की हैं और भक्तों की आध्यात्मिक मार्ग की बातें होती हैं। जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में कहते हैं वहाँ तो दंडवत प्रणाम करते हैं, वहाँ तो ऐसा करते हैं, लंबे लेटते हैं। अब इस तरह की बातों को संसारिक लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। हमारा घीसा गल है, हम तो जो करें आनंद आता है, हमारे पुण्य बढ़ते हैं, अहंकार खत्म होता है। ये दुश्मन जो हमारे जीव का दुश्मन है अहंकार, इस तरह का होता है। तो समाज तो सोचता है जिसका संतान नहीं होता निकम्मा आदमी, कर्महीन, इसकी शकल भी नहीं देखनी चाहिए। ये काल की प्रेरणा, लोक वेद है। और भगवान के मार्ग में वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। देखो पुण्यकर्मी तो वो भी हैं जिन नाम ले लिया, उनके संस्कार एक दूसरे पुत्र पुत्री में है तो भी अच्छी बात है। सब उस परमात्मा की आत्मा है, सबको लगा दे भगवान के चरणों। अब संस्कार जो हैं हल्के हो जाएंगे, परमात्मा अपने सतर से, अपनी पावर से ठीक करेगा उनको, तो वो हमारे आसानी से सुलझ जाएंगे और इससे जीवन में काम निपटा देंगे। आपका भी संतान है उसका भी, और जिनका संतान नहीं है वो तो बना बनाया काम है उनका। तो
देखो ये नहीं है कि भी संतान भगवान नहीं दे सकते, दे सकते, लेकिन उनको संतान नहीं दी इसलिए नहीं दी कि ये फिर इस 84 के कोल्लू में फिर जुड़ जाएंगे। उनके लिए स्वयं चले गए बालक बन के उस अपने भगत की प्रतिज्ञावश। अब दूसरी बार परमात्मा ने जो लीला वो करते हैं, वो लीला की। लगभग 60 वर्ष से ज्यादा आयु होगी थी नीरू और नीमा की, संतान कोई नहीं थी उनके, और उनका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया था। अब वो प्रतिदिन स्नान अवश्य करते थे क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म था, जिस कारण से उनके संस्कार ऐसे थे, नहा धो के खाना खाना। तो वहां एक लहर तारा नामक तालाब था। लहर उसका तारा नाम था। लहर तारा इसलिए बोलते थे कि गंगा का जल वर्षा के दिनों में एक लहरों के द्वारा ऊपर का उछल कर एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। उसमें स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे, प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। और वो उनकी झोपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। उसमें वन ही वन थे, वहां पर बहुत बड़ा सरोवर था। जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए, आकाश से अपने सतलोक से चलकर आए, वो तीसरे मुक्ति धाम से, उसी समय एक अष्टानंद नाम के महर्षि रामानंद जी के शिष्य, एक ऋषि अष्टानंद जी साधना कर रहे थे अपने गुरुदेव के द्वारा बताई गई क्रियाओं से। उसने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। उसकी आंखें जब उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी तो अष्टानंद ने क्या देखा कि एक बालक रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें इधर उधर कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो फिर भी हल्का सा आकार सूर्य का हमें दिखाई देता है। ऐसे ही जब उसने आंखें बंद की तो क्या देखा कि एक शिशु रूप बालक दिखाई दिया। फिर दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा, एक उस सरोवर के एक कोने में वो प्रकाश सिमट गया। सूर्य उदय से पहले का समय था। सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। वहां परमात्मा ने एक कमल के फूल पर आकर के वो विराजमान हुए। और अष्टानंद जी ने सोचा ये क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बालक रूप वहां कमल के फूल पर नहीं दिखाई दिया क्योंकि अंधेरा था। परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया। अब अष्टानंद जी वहां से उठकर चले गए, अपने गुरु पंडित रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव, आज मैंने ऐसी एक प्रकाश देखा आकाश से, क्योंकि ये भगवान का प्रकाश मानते हैं। हे प्रभु, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है, मेरा कोई भ्रम है। तब रामानंद जी ने बताया कि पुत्र, ये कोई तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं है और न ही कोई तेरा भ्रम है। ऊपर के लोकों से जब देव आते हैं, जिनका पुनर्जन्म होना होता है, वो आते हैं और किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करेंगे, वहाँ से उनका जन्म होगा, या कोई लीला करने आते हैं तब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। अब जैसा उस गुरु ने ज्ञान था, अपने शिष्य की संतुष्टि कर दी। उधर से नीरू नीमा स्नान करने के लिए उसी दिन चल रहे हैं। अब नीमा रास्ते में रो रही है और अपने भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही है। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर को नहीं भूल पा रहे थे। वैसे तो पुण्यात्माओं, ये जो मोहम्मद जी थे, हजरत मोहम्मद, ये शिवलोक से आए थे। एक बहुत अच्छी आत्मा थी, गण थे उनके, पिछले संस्कार अच्छे थे, उनके कारण ये वहाँ जन्म हुआ
उनमें शक्ति भक्ति थी, और जिस कारण से एक अलग से भक्ति विधि उन्होंने चलाई। अब क्या बताते हैं कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वो ब्रह्मा, गरीबदास दूसरा कौन है, देखा अपने घर में, वही मोहम्मद, वही महादेव, क्योंकि महादेव के ही ये पुजारी थे, और वही आदम, वही ब्रह्मा। आदम जी जो है बाबा आदम, ये ब्रह्मा जी के अवतार थे, उनके लोक से आए हुए थे। और दास गरीब दूसरा कोई नहीं देखा अपने घर में, यानी यहाँ अपने कमलों के अंदर आप देखो, तुम्हारी अगर भक्ति ठीक हो जाए, आपको पता लग जाएगा कि उस लोक में, जब आप ब्रह्मा के लोक में जाओगे तो सारी हिस्ट्री लिखी होगी आपके सामने कि आदम रूप में कौन प्राणी गया था यहाँ से। फिर वो क्या होते हैं कि वहाँ से भक्ति युक्त आते हैं, नीचे आकर उनके संस्कार कमजोर हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देकर फिर वो पितर रूप धारण कर लेते हैं, पितर लोक में जन्म होता है उनका जा करके। हजरत मोहम्मद जी को जब जबराइल नाम के एक देवता ऊपर लेकर गए थे फरिश्ता, तो वहाँ देखा था कि बाबा आदम स्वर्ग के अंदर रो रहा है, एक तरफ देखता है तो रोता है, दूसरी तरफ देखता है तो हंसता है। तब हजरत मोहम्मद के पूछने पर जबरील ने बताया कि ये बाबा आदम है, और ये रो इसलिए रहा है कि इसकी नकम्मी संतान जो थी वो गलत काम करते थे, आज नरक में पड़े हुए, उनको देखता है तो रोता है। अच्छी संतान इसकी थी, वो स्वर्ग के अंदर है, स्वर्ग की तरफ देखता है तब ये हंसता है। अब वो बाबा आदम वहाँ भी दुखी। तो कहने का भाव ये है कि ये सभी हमारे संस्कार मिले जुले हैं, हम कोई अलग कोई नारे हम नहीं हैं, लेकिन इस काल ने हमें कई भागों में बांट दिया, अब इनको फिर धीरे धीरे एक होना है। तो कहने का भाव ये है, जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान शिव को बहुत याद करती थी, अब नीमा रो रही है, अंदर से पुकार रही है कि हे भगवान, हे शिव जी महाराज, अपनी दासी को भी एक लाल दे दो, मेरा भी समाज में सिर हो जा, समाज के अंदर मुझे भी जीने का राह मिल जावे। हमें तो देखते ही लोग ये कहते हैं ये तो मनहूस आ गए हैं, इनकी तो शक्ल भी ना देखो, ऐसा कहकर बुरी तरह रो रही है। नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे देते, अल्लाह दे देते हमें, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं है। और तू ना रोया कर बार बार, तेरी आंखें फूट जाएंगी, बुढ़ापे का सहारा है नहीं, आंखें से तुझे दिखना बंद हो जाएगा, तो ज़्यादा दुखी हो जाएगी, बार बार मत रोया कर। ऐसे कहते बतलाते वो उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे। जून का महीना, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, सन 1398, संवत 1455, ये गर्मियों के दिन उत्तर प्रदेश काशी बनारस की बात है। अब पहले नीमा ने स्नान कर लिया, उस तालाब में स्नान करके वो बाहर आ गई। वो जो उधर से नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश कर गया, उसी घाट पर कच्चा सा स्थान था। नीमा जो कपड़ा बांध कर नहाई थी, उसको धोने के लिए, कपड़े चेंज करके उसको धोने के लिए पुनः गई वो सरोवर के किनारे। उस समय तक कुछ रोशनी सी हो गई थी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बातें हैं। धीरे धीरे वहाँ सुबह थोड़ी किरणें सी, थोड़ी रोशनी सी हो गई थी, जैसे सुबह सुबह कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। तो नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर एक पैर हिल रहा है। उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति को डस ना ले। उसने गौर से देखा, बहुत ध्यान से देखा। क्या देखा कि बालक एक पैर को तो ऐसे हिला रहा है, ऐसे ही हिला रहा, पैर मार रहा है। उसने देखा है तो बालक है, और कमल के फूल पर अपने पति से कहा, जो वहीं थोड़ी सी दूरी पर स्नान कर रहा था, कि देखना जी, देखियो कमल के फूल पर बालक है, बच्चा है, इसको उठाइयो, डूबेगा। अब नीरू स्नान कर रहा है ऐसे ऐसे करके। उसने सोचा ये तो मेंटल होली। अब इसमें जल के अंदर भी बच्चे दिखने लगे।
और नो कहे भगवान इसने सद्बुद्धि दो। फिर वह फिर जोर से कसक से कहती है जी सचमुच देखना देखना, देख डूब गया डूब गया। तो उसने सोचा भी देखते लूं, जिधर वो संकेत कर रही थी ध्यान किया तो सचमुच कमल के फूल पर बालक है। उसने तुरंत उठा लिया, उस कमल के फूल समेत उस बालक को उठा के अपनी पत्नी को थमा दिया। अब वो नीमा उसको लेकर परमात्मा को किनारे पर आ गई और नीरू नहाने लग गया। वो स्नान कर ही रहा था। अब नीमा परमात्मा को, वो तो परमेश्वर आए हुए थे, अपने आत्माओं जिस मालिक का नाम लेते हैं, रोम रोम करना जाते हमारे, जिसकी खोज में हम युगों से लगे हुए हैं, और वो परमात्मा उस बहन की गोदी में एक बालक रूप बना के, अब जो आनंद उस माई को महसूस हुआ होगा, जिसके नाम से आनंद होता है, जिसको आसपास वो हमारे हो तो उसको कितना सुख होगा। अब ये तो वो माई ही व्याख्यान कर सकती है, वही वर्णन कर सकती है, उसके पास भी जुबान नहीं होगी। लेकिन पुत्र मोह, मालिक की कृपा, इतना सुंदर बालक, उसको देख देख कर कभी उसको प्यार करती है, मुंह चूमती है, सीने से लगाती है और शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान का। हे भगवान, आज ही हृदय से पुकार की थी, आज ही भगवान आपने मेरी सुन ली। अब यहाँ बताते हैं कि जगत का पेखना पेख्या, धड़ी का नाम ना लेखा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश हर के 9 नंबर बना करते आ तरह खुद भगवान, अन्यों के शिव जी ने दे दिया। अब हम ऐसे ही अभी तक भ्रमित रहे। अब थोड़ी देर के बाद स्नान करके वो नीरू बाहर आया। उसने विचार लाया कि पहले तो हम मुसलमान बना दिए, मुसलमानों से हमारा ज़्यादा लिंक नहीं, हिंदू हमसे बात नहीं करते, और कहीं हम इस बालक को घर लेकर जाएंगे तो गांव वाले नगर वाले कहेंगे कि तुम किसी का चुरा के लाए हो। हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, हमें कहेंगे झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता, और हमारा हुलिया बिगाड़ेंगे, बालक को छीन लेंगे, पूछेंगे कहाँ इनकी माता पिता, वह रो रही होगी, तुम चुरा कर लाए हो किसी का। इस तरह की उसने 100 अटकल लाकर अपनी पत्नी से कहा कि भगवान इस बालक ने यहीं रख दे, इसी में अपनी खैर है। लेकिन नीमा कहती है जी ना जाने इस बालक ने मेरे पर क्या जादू कर दिया, अब मैं इसके बिना जी नहीं सकती, मर सकती हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने सोचा कि ये मानती नहीं और घर ते बेघर करवाएगी, बालक रहना नहीं। उसने अपने जीवन में पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया थप्पड़ मारने के लिए, रोते हुए कि तू जिद्दी होगी, मैं तेरी हर बात को मानता आया हूँ, इस कारण के हमारे संतान नहीं है कि तेरी आत्मा दुख ना पा जा, इसलिए तू जिद्दी होगी, हट करने लगी है, मेरी एक नहीं मानती है, और छोड़ इस बालक को। यूं हाथ किया ही था, परमात्मा बोले जो गोदी में थे, कहने लगे नीरू सावधान हो। अब नीरू रुक गया, डर गया कि कोई भूत है, प्रेत है, कि फरिश्ता है। बालक बोल पड़ा और कहा कि मुझे घर ले चलो, तुम्हारा कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। और नो बालक बोल पड़े, कलजा पाट जा। वो तो चुप हो गया, कत्ती सांस नहीं निकाला, और आगे आगे हो लिया अपनी धोती ठाक है, और घर पे आ गए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਏਐਸ ਕਾਲਜ ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਖੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਰਵਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦ satsang ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ,
ਠਾਕਰ ਰਵਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬਰਵਾਲਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿਵਾਈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਟਕਿਆ ਜੀ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ। ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ, ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ, ਪਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਝਾੜੇ ਝੂੜੇ ਵੀ ਲਗਵਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਲਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਜੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕੰਨ ਮਾੜਾ ਖੁਰਖੁਰਾਇਆ ਅਤੇ ਐਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਦਾ 5-6 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਸੀ 8 ਸਾਲੀ ਔਰ 16 ਸਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। 10-12 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ 3 ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਬੜੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਵਿਸਵੇ ਅਸੀਂ ਲਈ। 2 ਵਿਸਵੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਜਾਨੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।